السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد القبیر بھائی بول رہے ہیں؟ جی بھائی. یہ عبد القبیر بھائی میں ندیم بول رہا ہوں ممبئی سے. جی آپ کہاں سے ہیں عبد القبیر بھائی؟ میں راجستھان سے بول رہا ہوں. راجستھان سے ہیں آپ، ماشاء اللہ. عبد القبیر بھائی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، جی کہ روزے کس حالت میں ٹوٹ جاتے ہیں اور کس حالت میں ان کا جو ہے نا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ یہ تو بھائی مسئلہ دیکھنا پڑے گا یار، مجھے ذہن میں نہیں ہے بھیا. اچھا ذہن میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی مردہ عورت سے بدفعلی کرے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ تو یہ مسئلہ آپ نا مفتی صاحب سے پوچھیے بھائی جان، میں تو طالب علم ہوں یار. آپ طالب علم ہیں تو میں اتنا بڑا مسئلہ تو آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں. مثال کے طور پر کہ کوئی شخص نے کسی جانور یا مردہ عورت سے بدفعلی کر لی تو اس کو روزے کا کفارہ. اصل میں کیا ہے، سنیے میں نے جو ہے نا ابھی عالیہ اولا پاس کی ہے. کیا پاس کیے؟ جو یہ ہدایہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں کلاسوں میں، تو ہدایہ ثانی کا یہ مسئلہ ہے. میں نے ہدایہ اول پڑھی ہے ابھی. اچھا تو یہ ہدایہ اول میں ہی ہے میرے بھائی؟ نہیں ہدایہ اول میں نہیں ہے بھائی. یہ بھائی یہ ہدایہ اول میں ہی ہے. ہدایہ اول میں بھائی جان صرف زکوٰۃ کے مسئلے ہیں. اور اچھا ہاں روزے کا مسئلہ، یہ بحث ہم نے پڑھی نہیں ہے، لاسٹ کی بحث ہم نے پڑھی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ تک پڑھا ہے ہم نے. اچھا دیکھو میں بتا دیتا ہوں، یہ ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 219 کتاب الصوم. ہاں یہ مسائل میں اس نے کے اندر پوری عبارت سن لیجیے. اور یہ مسائل جو ہے نا یہ مسائل جو ہے آپ یہ مفتی صاحب سے پوچھیے، آپ کی پوری بات کلیئر ہو جائے گی. جی میں نے کئی مفتیوں سے بات کی ہے میرے بھائی، اور آپ کی گفتگو میں کسی گروپ کے اندر سن رہا تھا اور آپ کی گفتگو میرے کو اچھی لگی کہ آپ اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا. تو یہ عبارت آپ پوری سن لیجیے، ایک عبارت پوری سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو جواب دینا ہے دیں، نہ دینا ہے نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی نہیں ہے کوئی بھی، ہے کہ نہیں؟ نہیں تو زبردستی کیا بھائی، پتہ ہوتا ہے نا مسئلے کی جواب انہیں چیز سے دیا صحیح ہے آپ کی بات. آپ عبارت تو سن لیجیے. اور سنیے میں جو ہے مسائل انہیں مسائل پہ بات بھی کرتا ہوں جو چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اگر گروپ میں بھی جیسے کوئی مسائل نا جو پتہ نہیں ہوتے تو میں سیدھا منع کر دیتا ہوں کہ بھائی اس سے میں بات نہیں کروں. چلو اچھی بات، مجھے پتہ نہیں ہوتی. اچھی بات ہے. آپ میری بات سنیں گے ابھی نہیں سنیں گے؟ جی غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے بتائیں؟ یہ تو معلوم ہوگا آپ کو. جی کس چیزوں سے فرض ہوتا ہے غسل؟ غسل 4 چیزوں سے فرض ہوتا ہے. کیسے؟ شہوت کے ساتھ منی نکلنے پر، ٹھیک ہے، جمع کر لینے پر، اور حیض سے اور نفاس سے. کس سے؟ حیض اور نفاس. یہ 4 چیزوں کے تعلق سے آپ کے اوپر مطلب آپ کے نزدیک جو ہے نا غسل فرض ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب یہی چیز در مختار کے اندر لکھی ہوئی ہے. کوئی عورت اپنی مرضی کوئی عورت اگر اپنے دبر کے اندر جانور کا اہلیہ تناسل داخل کر لے تو اس کا غسل نہیں ٹوٹے گا. کوئی عورت اگر اپنے دبر کے اندر جانور کا اہلیہ تناسل داخل کر لے تو اس کا غسل نہیں ٹوٹے گا. ارے تو بھائی آپ ان چیزوں کے سوال کیوں کر رہے ہو مجھ سے یار؟ میں آپ سے میرے بھائی کبھی دیکھی نہیں. ابھی تک آپ نے دیکھی نہیں؟ یہ آپ کی معتبر کتابوں میں سے موجود ہے میرے بھائی. دوسری یا تیسری نمبر کی کتاب ہے کتابیں اور یہ کتابیں ابھی تک پہلی بات تو یہ دیکھی نہیں میں نے، ٹھیک ہے. اچھا. اور دوسری بات کیا ہے کہ تو مطلب آپ نے ابھی جیسا کہا کہ 4 چیزوں سے غسل جو ہے نا فرض ہو جاتا ہے، یہی کہا نا آپ نے. اب میں آپ کو ان میں سے کئی چیزیں بتا رہا ہوں، تو غسل کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے اس کا؟ ارے بھائی مسائل تو دیکھیے کیا مسائل ہیں وہاں پہ شروع میں دیکھیے. آخر میں دیکھیے بھائی ٹھیک ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ دیکھتے ہو نا تو اس کو فوراً کیا ہے الجھن سمجھ کر اور پوچھتے نہیں ہو، بلکہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. اچھا ایسا آپ مطلب یہ آپ کا ماننا ہے؟ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہو جو تمہارے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو مسئلے بدل لیتے ہو. ارے بھائی اس کو پوچھنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تحقیق تو کر رہا ہوں میرے بھائی. ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ 4 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب میں نے صرف آپ کو ایک ہی چیز بتائی ہے، اس کے اندر اور بہت بڑی عبارت ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ صرف ایک مسئلہ بتایا میں نے. اس کے اندر لکھا ہے جانور سے بدفعلی کر لے اگر کوئی آدمی تو اس کے اوپر بھی غسل فرض نہیں ہے. اور ایسی بچی سے بدفعلی کر لے، منہ کالا کر لے جو لائق شہوت نہیں ہوئی ہے، اور اس طریقے سے بدفعلی کرے کہ اس کی دونوں شرمگاہوں کا حائل جو بیچ میں پردہ رہتا ہے وہ بھی پھٹ جائے، تب بھی اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے.
समझे बात को? बच्ची के ऊपर फर्ज नहीं है ना, उस बच्ची के ऊपर इसलिए फर्ज नहीं अरे है भाई कि बच्ची का मसला नहीं है यहाँ पर, यहाँ बच्ची का मसला नहीं है। सुन रहे हो? थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात आप बता रहे हो। किसकी? और भाई थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ना। भाई ये थानवी रहमतुल्लाह अलैह हो, तुम्हारे हिदाया हो, दुर्र मुख्तार हो, शरह वकाया हो, फतावा आलम, सब चीज़ों के अंदर मौजूद है, हर किताब में मौजूद है। आप देखिए तहकीक का दावा करते हो कि आप बहुत बड़े मुहक्किक हो, ठीक है जी भाई, हम तो तहकीक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे को जो चीज़ समझ में नहीं आती, आप जैसे अल्लामाओं से पूछ लेते हैं, आप जैसे मुफ्तियों से पूछ लेते हैं मेरे भाई, जो अपनी बात कही हुई बात से फिर जाते हैं। अभी आपने कहा कि 4 चीज़ों से गुस्ल फर्ज होता है। और अभी मैंने हिदाया अव्वल पढ़ी है। हाँ, हिदाया अव्वल में तुमने आपने कहा कि हिदाया अव्वल में ये मसला है ही नहीं। जब मैंने आपको रेफरेंस दिया तो आपने बोला हाँ है, मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ अभी तक। तो आप तो खुद एक बात पर नहीं है। देखिए कबीर भाई, मेरा आपको कोई, सुनिए मेरी बात, मैंने पढ़ी है और वल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ मैं, मतलब हम देखिए तो मैंने सिर्फ है ना ज़कात के बाब तक पढ़ी है। अच्छा, ज़कात के बाब तक पढ़ी है आपने, कोई बात नहीं। आपके पास में ये अरबी में है या उर्दू में है, ये बताएं। अरबी में है, हमने अरबी में पढ़ी है भाई। अच्छा, अरबी में पढ़ी है आपने, ठीक है। ये इसकी उर्दू शरह है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसकी उर्दू शरह है ना। अशरफुल हिदाया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 219 पर यही इबारत आपको मिल जाएगी। अच्छा, सेम, ठीक है। तो मैं आपको कोई तंज नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं। अभी रोज़े रमज़ान आने वाले हैं, इसके लिए रमज़ान के ताल्लुक से मैंने आपसे ये गुफ्तगू की है कि कोई भी हनफी हजरात अगर इस चीज़ को कुरान और हदीस के मुताबिक मानता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो क्या उसके सामने अगर वो ऐसा कर ले तो उसका रोज़े का कफ़ारा नहीं देगा वो? हाँ, तो आप इसकी तहकीक जो है ना मुफ्ती साहब से कीजिए। कौन से मुफ्ती का आप नंबर दें? आप मुझे नंबर दे दें, कौन से मुफ्ती से बात करनी है बताएं। अच्छा ठीक है, आप ना ऐसा करिए कि कोई उस्ताद को पढ़ाते हो ना उनसे इसकी तरफ। मैं देखिए अब्दुल कबीर भाई, देखिए असल में क्या है, कोई मसला फंसता है ना तो आप लोग मसला चेंज कर लेते भाई। ये तो देखो, ये तो आपने कहने मेरे भाई मुझे बताया आपने, मुझे ठीक है, आपने मुझे बताया ये मसला, ठीक है ना। आप क्या करिए, आप व्हाट्सएप पे मुझे इसका स्कैन भी दे दीजिए और फिर मुझसे मैं आपके पास किताब मौजूद है, मेरे को स्कैन देने की क्या जरूरत है? जो रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, शरह मौजूद नहीं है। शरह नहीं है तो अरबी का भी रेफरेंस दिया है ना मैंने आपको। हाँ, क्या बताया था आपने? सफ़ा नंबर बता दीजिए तो। जिल्द नंबर 1 किताबुल सौम सफ़ा नंबर 219। सफ़ा नंबर 219, चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि आपने कहा कि हम अपना मसलक चेंज कर लेते हैं। ये आपके अपने दिल की बात है। आप साबित करें कौन सा मसलक चेंज किया है, जरा बताएं। साबित कर सकते हो? देखो, बोलना बहुत आसान होता है, साबित करना बहुत मुश्किल होता है। यही मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ यही जहर भरा जाता है कि अहले हदीस ऐसे हैं वैसे हैं फलाना। अभी तुमसे एक सवाल कर लूँगा, अभी तुम्हारे से एक सवाल कर लूँगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अपना तंज बुग्ज आप अपने घर में रख कर आया करें। जब आप दीन इस्लाम की बात करें ना तो तंज और बुग्ज अपने घर में रख कर आया करें, खालिस नियत से बात करा करें। बात छोड़ो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं तालिबे इल्म हूँ, तो मैं उन्हीं चीजों पे बात करता हूँ जो मुझे पता होती है। अच्छा, तो आपको जो चीज पता थी उसी के ताल्लुक से बात किया। आपने कहा कि 4 चीजों से गुस्ल फर्ज होता है, मैंने कहा अलग सवाल किया। हाँ तो ठीक है, 4 चीजों तो कुछ वाजिब होता है। अब फिर आपने क्या कहा कि ये देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या कहा यार बात समझ में नहीं आ रही, मैं इसकी तहकीक करूंगा, मैं मसला थोड़ी चेंज कर लूंगा आपकी तरह। तो क्या आपको समझ में नहीं आई तो आप फिर वही बात। अच्छा, क्या मसला चेंज किया, बताएं क्या मसला चेंज किया? आपके बात समझ में नहीं आई तो आप जो है, जैसे आपके अक्सर हजरात मैंने जितने भी देखे हैं 90% तो बात समझ में नहीं आई तो मतलब चेंज करके जो है कैसा मसला बताओ तो सही, क्या मसला चेंज? नहीं, मतलब जैसे अभी तक हनफी थे, अब गैर मुसल्लिद आते हैं, उनको इस तरफ सवाल करते हैं जैसे आपने सवाल किया। चलिए ठीक है, छोड़ दे, चलिए इसका भी जवाब देता हूँ। गैर मुसल्लिद बन गया मतलब चेंज करके। गैर मुकल्लिद का मतलब बता सकते हो? गैर मुकल्लिद का मतलब बता सकते हो? बता सकते हो? हंसने से झालस नजर आती है मेरे भाई। आप बता दें गैर मुकल्लिद का मतलब क्या होता है? हाँ बता तो रहे हैं। बताएं। मुकल्लिद किसे कहते हैं जो तकलीद करता है? मुकल्लिद जाहिल को कहते हैं मेरे भाई। आपकी किताबों में दिखाऊं? बोलो, आपकी किताबों में दिखाऊं? अहले इल्म का इस बात पर इजमा दिखाऊं? बोलिए। जाहिल हो या आलिम हो, सुनिए, जाहिल हो। देखो, मुकल्लिद जाहिल होता है, चाहे मुकल्लिद में आलिम होता ही नहीं है, ठीक है। मुकल्लिद अगर वो मुकल्लिद है तो वो जाहिल है।
जाहिल आदमी तकलीद करता है, आलिम थोड़ी करता है तकलीद। सुनो, जाहिल हो या आलिम हो, वो अगर किसी की बात को बिना दलील के मान रहा है तो वो मुकल्लिद है। वो मुकल्लिद है ना, तो हम किसकी बात को बिना दलील के मान रहे हैं, जरा बताएं। हैं? हाँ, हम मान रहे हैं ना, तो हम तो आप मानो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी इमाम साहब की तकलीद आपके ऊपर फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुबाह है, क्या है? आप क्या आपके हर सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया अब्दुल कबीर भाई। क्या क्या क्या? अल्लाह अकबर भाई, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ। क्या जवाब दे रहा हूँ? क्या जवाब दे रहा हूँ? पूछा मुकल्लिद कैसे कहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ मुकल्लिद कैसे कहते हैं। कैसे कहते हैं बताएं? आपने पूछा, बता तो दिया आपको। क्या बता दिया? कि जाहिल हो या आलिम हो, जो किसी की बात को बिना दलील भाई आलिम भी तकलीद करता है। मतलब आलिम भी तकलीद करेगा? बिल्कुल तकलीद करता है, हम कर रहे हैं। देखो हमारे कितने आलिम तकलीद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आलिम भी तकलीद करता है, मतलब ये, मतलब तुम्हारे अंदर मुकल्लिद की तारीफ आपने जो की है, बिना दलील किसी की भी बात को मान लेना, ये तकलीद है ना? ये तारीफ की आपने। तो इसमें आलिम हो और जाहिल हो, कोई भी हो, सब तकलीद करते हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी मुतलक मैंने बात रखी है, अगर कोई भी किसी की बात को बिना दलील से मानता है तो वो मुकल्लिद है। अभी तो आपने कहा कि आपके आलिम भी तकलीद करते हैं, आप भी तकलीद करते हो, यही कहा ना आपने? तो किन मसलों में आप तकलीद करते हैं, जरा बताएं। क्या बात आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मानते हैं? हर मसला जो समझ में नहीं आता वो हम मानते हैं। अच्छा, हर मसला जो आपको समझ में नहीं आता वो आप मानते हैं, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ। तो इमाम साहब का हुक्म ये है इसी के अंदर, हिदायत के अंदर, के रोज़े की हालत में दुबुर में सोबत करने से रोज़े का कफ़ारा नहीं, मुर्दा औरत से सोबत करने से रोज़े का कफ़ारा नहीं, जानवर से सोबत करने से रोज़े का कफ़ारा नहीं। तो मतलब आप इस बात को मानते हैं और ये चीज़ सही है आपके नज़दीक? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, और ये कुरान और हदीस के मुताबिक भी है? बिल्कुल मुताबिक है। बिल्कुल मुताबिक है। कौन सी आयत, कौन सी हदीस के मुताबिक है, ज़रा बताएं। फिर वही बात कितनी बार कह चुका हूँ भाई। यार अभी आप धड़ल्ले से ये बोल रहे हो कि इन्ना लिल्लाह, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है कि रोजे की हालत में आप जो जानवर से बदफेली और मुर्दा औरत से बदफेली करे उसको कुरान और हदीस के मुताबिक बोल रहे हो? शर्म नहीं आती है आपको? ये मजहब में शर्म तो सुनिए, शर्म आपको आनी चाहिए भाई। मैं 3 बार कह चुका हूँ कि मैंने ये मसाइल पढ़े नहीं है। अरे तुमने नहीं पढ़े तो तुम तकलीफ तो करते हो। ये रेफरेंस जो मैंने दिया झूठा साबित करके बताओ, तब तो मैं मानूं कि भाई चलो भाई रेफरेंस आपका बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इन मसाइल को पता करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे इनके तो मतलब आपने तो भाई अभी तो आपने की तरफ या अपने किसी आलिम की तरफ या ठीक है ना, उसकी तरफ रुजू करता हूँ। फिर जब रुजू करूंगा तो वो मुझे मसला समझाएगा कि भाई ये मसला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तब मैं उसके आपसे जवाब दे दूंगा। नहीं, अभी तो आपने जवाब दिया ना कि ये मसला बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक है। अभी तो आपने जवाब दे दिया ना इसका। हाँ, क्यों भाग रहे हो? हदीस के मुताबिक है, मुझे अपने इमाम पे इतना एतबार है, तभी तो मैं तकलीद करता हूँ। तुम्हारे तकलीद इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे मुझको इमाम पे इतना एतबार है कि उनका हर मसला जो है कुरान और हदीस के मुताबिक है, इसीलिए उन्होंने तकलीद कर। भाई देखो, सही मुस्लिम उठाएंगे, सुनन अबू दाऊद उठाएंगे, उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दुबुर में सोबत करे उसके ऊपर लानत है। हाँ, तो और यहाँ पे तो ऐसे लानत हराम काम पर होती है, हलाल काम पर होती है। सुनिए, आपकी अकल में इतनी सी बात नहीं आती कि लानत क्या चीज है और कफारा किस चीज पर है। अच्छा नहीं, मतलब लानती काम करने के बाद में भी कफारा नहीं, कैसे रोजे रखते हो? अच्छा, मतलब जिस चीज के ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है वो काम करने के बाद में भी आपका रोजा बराबर रहता है। अच्छा लानत हुई है तो इसका क्या मतलब, वो कफारा? नहीं, कफारा तो अलग चीज है मेरे भाई, कफारे पे तो मैं गया ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, एक काम करो, तुम एक काम जोश में आ गया। हाँ बोलो। इन मसाइल को आप कुरान और सही हदीस से साबित कर दो। मतलब दावा आपका साबित मैं करूँ? अजीब सी हालत है यार, इसके लिए मुकल्लिद जायज होता है। देखिए आपने कहा, अभी आपने क्या कहा? अभी आपने कहा कि इसको कुरान और हदीस के मुताबिक साबित करो, है ना? आपने ये कहा ना भाई। मतलब इसका कहने का ये था, बेवकूफ की हड्डी हंस रहे हो, 19% बात नहीं सुन रहे हो। अरे तुम जोकर चाले करोगे तो हंसेगा नहीं आदमी कोई मुखालिफत, कुरान और हदीस से इन मसाइल की मुखालिफत साबित कर दो आप। हाँ तो मैं भाई वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर ये कुरान और हदीस के मुताबिक है तो तुम्हारे अल्लामा, तुम्हारे मुफ्तियों ने जो किताब में लिखा है इमाम साहब की तरफ मंसूब करके, कौन सी आयत और कौन सी हदीस से लिया है?
साबित करो, आपका दावा है ना कुरान और हदीस का निचोड़ है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, साबित करो आप। तो आप लोग जाहिलाना बात कर रहे हो कि मैं साबित करूं? तुम्हारा मजहब मैं साबित करूं? समझ में आपके बात इतनी भी समझ में नहीं आ रही। अगर कोई चीज कुरान और हदीस के मुताबिक अगर उससे कुरान और हदीस की आयत नहीं है तो उसके खिलाफ भी नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसके कहने का मतलब, चलिए ठीक है, कुरान और हदीस के खिलाफ भी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ये भी बात आप मसाइल होते हैं जो कयास से हल किए, जैसे बहुत से मसाइल होते हैं कयास से हल किए जाते हैं, वो तावील मत करो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि भाई बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो कुरान और हदीस से वाज़े नहीं मिलते हैं, वो कयास और इज्मे में देखने पड़ते हैं। यही बोल रहे हो आप? यही बोल रहे हो? अच्छा, ये जानवर से और मुर्दा औरत से किसने बदफेली पर इज्मा किया है, जरा बताएं। रोजे की हालत में। अरे इज्मा सुनो, इज्मा की बात छोड़ो। अच्छा, कयास किसने किया है ये बताएं, कौन सी आयत से और कौन सी हदीस से कयास करके जो ना जानवर से और मुर्दा औरत से बदफेली करने के लिए कहा है? अरे वही तो कह रहा हूँ, ये चीजें मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, तो आपको क्या जवाब दूँ? देखिए अब्दुल कबीर भाई, ऐसा होता है कि जब आपको इस बारे में मालूम नहीं है तो इस बारे में आप मालूमात करें। अभी आप तालिब इल्म हैं माशाल्लाह, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये सारी किताबें तर्जुमे से पढ़ेंगे, सुन लीजिए मालूमात करूंगा। हाँ मुझे स्कैन दीजिए, मैं ठीक है, मालूमात करूंगा। आपके पास किताब मौजूद है, मुझे स्कैन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे स्कैन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में किताब मौजूद है, आप खुद अपनी आँख से पढ़कर वो स्कैन वहाँ पर लगा दें। अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मौजूद ही नहीं है। आपने कहा अशरफुल हिदायत की बात ही छोड़ दें मेरे भाई, ये तो एडिशनल रेफरेंस दिया है मैंने आपको, मैंने आपको अल हिदाया का रेफरेंस दिया 219 नंबर, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ये 219 का स्कैन लेके जो ना ग्रुप में लगा दें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप तालिब इल्म हैं माशाल्लाह, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप बोलिए। अभी आप तालिब इल्म हैं माशाल्लाह। कहा ना, असल में बात ये है, मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने ये मसाइल पढ़े नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई इश्काल है तो जब आपने, हाँ वही अब्दुल कबीर भाई वही बात मैंने आपसे ये कही कि अगर आपको जवाब चाहिए तो मैं जो है इसकी तहकीक कर लेता हूँ, जवाब आपको उसके बाद। आपकी सारी, ये नहीं है कि कोई मसला आ जाता है तो मैं चेंज कर लूँ, बल्कि मैं तहकीक करता हूँ मसाइल की। जी बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा था आपसे, मैंने इजाज़त लेने के बाद में जिस चीज़ में आपको महारत थी, जिस चीज़ के बारे में आपको पता था, उसी के ताल्लुक से आपसे सवाल किया है, ठीक है। आपकी बात भाई, आपने कहा ना चार चीज़ों से गुस्ल जो है ना फर्ज हो जाता है। मैंने उससे हटकर सवाल किया आपसे, और जबकि सही बुखारी, करूँगा ना, ठीक है आप तहकीक करें, कोई बात नहीं। मेरा अब आपसे एक आखिरी मुतालबा ये है मेरे भाई, आप तालिब इल्म हैं माशाल्लाह, आप जितनी भी किताबें ये फ़िक़्ह हनफ़ी की हैं उनको आप तर्जुमे से, मतलब उनको जो ना उर्दू में भी पढ़ें, और पढ़ने के बाद सुन लीजिए मेरी बात, और कोई एक तकरीर अपने मिंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर कर दें, इसी मसले की 219 नंबर पेज की एक तकरीर किसी से आलिम से करवा दें ज़रा, जो कुरान हदीस के मुताबिक है ना। ये तकरीरें क्यों नहीं करते हो? ये मसले मसाइल क्यों नहीं बताते हो? रोजे की हालत में जानवर से की बात छोड़ो, आप तकरीर की बात छोड़ो, आप कल मुझे खुद फोन कर लेना, मैं तहकीक कर चुका हूँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, आप मेरे को, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, क्योंकि अक्सर मैं मसरूफ़ रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है जनाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और जहाँ तक ताल्लुक की बात है तो मैं उन्हीं चीज़ों में बात करता हूँ जो मुझे मालूम होती है, ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कोई इसी नियत से मैंने आपको फ़ोन नहीं किया था, जो चीज़ आपको मालूम थी उसी के ताल्लुक से मैंने आपको फ़ोन किया। बाद में आपने पलटी मारी कि इसके बारे में भी आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अरे तो मैंने कहा था कि चलो मुझे उसी के बारे में मालूम है, लेकिन आपने अलग मतलब पूछा तो वो मतलब मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं तहकीक करूँगा ना। चलो गुस्ल के बारे में पूछ लिया, अभी क्या हो गया यार, गुस्ल नहीं टूटता है ना, जानवर से बदफेली करने पर गुस्ल नहीं टूटता है। अरे भाई क्या कह रहा हूँ, तहकीक करूँगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बुखारी में आपने पढ़ी होगी कि औरत और मर्द की नंगी शर्मगाहें मिल जाए तो गुस्ल फर्ज। बुखारी कहाँ से पढ़ लूँगा, मैंने अभी बुखारी शुरू हुई, अभी मैंने मिशकात पढ़ी है तो बुखारी कह रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब आप बुखारी तक पहुँचे भी नहीं, कितने साल हो गए पढ़ते हुए आपको? अभी भैया अरबी सीख रहे हैं, शुरुआत है हमारी, बता तो रहे हैं। अभी शुरुआत है, तो मतलब ये बुखारी अभी पढ़ाना शुरू करेंगे आपको कितने टाइम के बाद में? फिर मिशकात पानी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तिरमिज़ी में पढ़ेंगे आखिरी साल में। अच्छा, आपके नज़दीक सबसे बड़ी जो किताब है मिशकात है, इसका मतलब बुखारी को छोड़कर?
कि आप पहले बुखारी अरे पढ़ रहे यार हैं? अभी तो मिशकात से पहले शुरुआत से शुरू किया जाता है ना। अच्छा, मिशकात मतलब छोटी किताब है या बड़ी किताब है? वही मुतालबा कर रहा हूँ। मजमूआ है, उसमें बुखारी की भी हदीसें हैं, मुस्लिम की भी हदीसें हैं। अच्छा, ये मिशकात जो किताब है, हदीस की किताब जो है, इसके अंदर सनद वगैरह रहती है क्या भाई? नहीं, इसमें सनद हद है, क्योंकि जो बयान करने वाले हैं उन्होंने खुद जी, उनके सिर्फ उनके हवाले से सिर्फ बात लिखी गई है, सनद वगैरह कुछ नहीं कि ज़ईफ़ है, सही है, हसन है, क्या है ना, इस तरीके की बात है ना। जो अभी ज़ईफ़ है उनके आगे बता दिया गया है कि ज़अफ़हु तिरमिज़ी, इस तरह लिख दिया गया है। अच्छा, मतलब इसके अंदर अभी सनद मौजूद है कि भाई ये किस वजह से जो है ना हदीस जो है ना ज़ईफ़ है वगैरह है, इस तरीके से है ये इसके सब अंदर? नहीं लिखा है, अच्छा अच्छा, चलिए ये ठीक सब है। नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे मेरे भाई। अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। कल इंशाल्लाह फिर अगर आपको वक्त मिले या मुझे वक्त मिलेगा और आप कल मुझे मैं याद रहेगा मसले तो की मैं फ़ोन तहकीक कर करूँगा। लूँगा, तो आप मुझसे अच्छी तरह बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी और है ना, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।